When I talk about industries in India, and I gave you the reference of 4 sector industries. Industries in India includes manufacturing, mining, electricity, and construction. And that gives us the 8 4 sector industries where electricity is included, coal, natural gas, crude oil is included, apart from iron, steel, cement, fertilizer. When I try to take aluminium, and of course, when I talk about aluminium sector, it has been pushed by Niti Aayog, so that is what we added. Cement, we gave ourselves understanding of how it is evolving out with the feedback equation with infrastructure development. Manufacturing policy, thus is focusing only on manufacturing development. And manufacturing policy incorporate the 5 pillars of resurgent India. We should be aware of that. We have talked about it. And one of the pillar that talks about minimum government and maximum governance, there is the requirement of us to take bare minimum presence of public sector enterprises. And thus we took the opportunity to talk about that strategic sector, public sector enterprises will continue to exist in India. And strategic is what we created here, relating to national security, critical infrastructure, energy, minerals, and financial sector. Baki sare non-strategic will be either eventually be disinvested or will be shut down. This is where we close down with our reference. And now we want to study in the categories of national manufacturing policy, which we divided into 5 categories clubbed up as 3. So NIMZs and industrial townships, followed on by MSMEs and Spurti, and finally Make in India is what we'll be highlighting. So we are getting on with the reference of NIMZs and industrial township to begin with. And that is where NIMZs and national investments and manufacturing zones. And when I take reference of national investment and manufacturing zones, it basically is correlated to industrial corridors that have been integrated with industrial townships. So our NIMZs is incorporated with these 2 constituents. When I talk about the NIMZs, the most defined NIMZ that we take up is Delhi-Mumbai Industrial Corridor. DMIC is basically correlated with the most mobilized example, but usko add karne se pehle dhyan se judge karte hain. Industrial corridors, which is incorporating multiple levels of planning, implementation for us to apply, are 6 with the DMIC, Delhi-Mumbai Industrial Corridor, being the most significant one. हम इसी का सपोर्ट लेकर इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स के बारे में समझेंगे, बट इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स को पहले ऐड ऑन कर देते हैं, फिर कॉरिडोर्स को पिकअप कर लेंगे. So what is industrial township? Clean energy, social infrastructure, skill development as a special purpose vehicle with basic, non-basic functions along industrial corridors and star mark pointer, joint venture with either state governments or mobilization of PPP mode. पब्लिक प्राइवेट पार्ट लिख लिया है तो पहले समझा दो. अब हम उसके बाद आपको जैसे कैटेगरीज डिमार्केट आउट करवा देंगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अप्लाई इट विद द फैक्टर्स. और इसमें एक और चीज आप ऐड कर सकते हो. सो लेट मी ऐड इट अगेन विद अ स्टार मार्क फैक्टर. द अर्थवाइल the PPP model that we have taken into account is correlated with is the ecosystem of all administration regulation on single window portal, and it relates to what हमने सारे important pointers लिखवा दिए. आप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को जज करेंगे. आपने इसको ले लिया है तो आप हमें जल्दी से गो अहेड दे दोगे, and then we'll be understanding it, and then we'll be proceeding. NIMZs always correlates to industrial corridors and industrial township. And basically national manufacturing policy को पढ़ना आसान काम है, उसको retain करना मुश्किल इसलिए होता है because we try to take the different constituents of manufacturing policy as different watertight compartments, which they are not. They are related. और हम लास्ट में एक बड़ा लॉजिकल सा डायग्राम बना देंगे, उससे आप इसको आराम से समझ जाओगे. Now, when I talk about, I'm focusing on industrial township. बेसिक एंड नॉन बेसिक जो है थोड़ा सा टेक्निकल कैटेगरी ऑफ फंक्शन होता है. इस टेक्निकल कैटेगरी ऑफ फंक्शन में आप अपने आप को अप्लाई कर दो. बेसिक इज फॉर एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट का मतलब है विच मेक्स मी अर्न, एंड नॉन बेसिक इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन. अब इसके एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं. आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयर. आप सबने इसको कॉपी डाउन कर लिया है तो जरा गो अहेड दे दो. हो गया कॉपी?
अब थोड़ी देर के लिए ध्यान से समझो, फिर हम दोबारा से इसको ओपन अप कर देंगे एंड विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ इट इज फंक्शनिंग एज एसपीवी। कोई भी अर्बन एरिया का एग्जांपल ले लो, आप दिल्ली पिकअप कर लो, मुंबई पिकअप कर लो, अहमदाबाद पिकअप कर लो, कोई भी। Now Delhi and Mumbai are multifunctional town. I mean, I cannot apply Delhi and Mumbai with single category of function. Delhi administrative भी है, Delhi industrial भी है, Delhi educational भी है, Delhi tourism भी है. So you have got multiple things that are correlated with it. Ideally, I'm sitting in lab. It's a technical thing. Urban functions को हम दो categories में divide करते हैं, and industrial townships give recognition to that. कौन से function होते हैं? बेसिक वो फंक्शन है जो मेरी कैपेसिटी को इन द गिवन मैप रिकॉग्नाइज करता है। एक आसान एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा आराम से समझोगे। धनबाद ऑन द मैप ऑफ इंडिया एंड ऑन मैप ऑफ वर्ल्ड इज नोन फॉर माइनिंग। एक सिंगल एक्टिविटी है माइनिंग, कोल माइनिंग। धनबाद इज अ कोल माइनिंग एरिया। तो धनबाद जो कोल प्रोड्यूस कर रहा है उसको सेल कर रहा है, उससे वो अर्न कर रहा है। तो धनबाद का बेसिक फंक्शन क्या हो गया? कोल माइनिंग। कंफर्टेबल? सो बेसिक इज व्हाट मेक्स मी अर्न। तो अहमदाबाद का बेसिक फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉटन टेक्सटाइल। जमशेदपुर का बेसिक फंक्शन क्या हो जाएगा? आयरन स्टील। आई होप यू आर गेटिंग इट, है ना? पर मोस्ट ऑफ द टाउन्स आर मल्टी फंक्शनल, तो बेसिक फंक्शन कई बार मल्टी फंक्शन भी होते हैं। बेसिक फंक्शन का मतलब है माई इकोनॉमिक कैपेसिटी इज बीन जज्ड बाय इट, ये पॉइंट है। नॉन बेसिक का क्या मतलब? अब धनबाद का ही एग्जांपल लेते हैं। धनबाद इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सिटीज, मेगा सिटीज ऑफ आवर कंट्री, जिसमें मिलियन प्लस पॉपुलेशन रह रही है। तो मान लीजिए आप और हम सिटीजन्स हैं धनबाद के, हमारे को अपने डेली बेसिस पे कुछ गुड्स और सर्विसेज चाहिए। डेली बेसिस पे मुझे लोफ ऑफ ब्रेड चाहिए, वीकली बेसिस पे मुझे टूथपेस्ट चाहिए, डेली बेसिस पे मुझे कैब सर्विस चाहिए, डेली बेसिस पे मुझे स्कूल फैसिलिटी चाहिए, डेली बेसिस पे मुझे मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए। ये फैसिलिटीज के लिए क्या हम धनबाद से रांची ट्रैवल करेंगे डेली? नहीं करेंगे ना। वो सर्विसेज भी तो धनबाद ही प्रोवाइड कर रहा है, बट दैट इज फॉर इट्स ओन पीपल, सबसिस्टेंस। वो क्या हुआ? नॉन बेसिक। हैव यू गॉट इट? तो नॉन बेसिक सारे टाउन्स का सिमिलर होता है, बेसिक किसी किसी का स्पेसिफिक होता है। और एक बड़ा जनरल सा असेसमेंट ले, जो ट्रू फॉल्स बोलते हैं ना, टी और एफ टाइप करना बस, और कुछ नहीं चाहिए। डू आई साउंड करेक्ट? अगर कोई स्टेटमेंट मुझे मिला, डू आई साउंड करेक्ट इफ आई से non-basic functions will always be in a bigger list than basic function for a town. Non-basic will be more diverse than basic. True, false? और non-basic function repeated होंगे, क्योंकि non-basic function क्या है? जो आपको subsistence के लिए चाहिए वो तो सभी को चाहिए। सो इंडस्ट्रियल टाउनशिप को डेवलप करने का लॉजिक है बेसिक और नॉन बेसिक फंक्शंस को मोबिलाइज करना। बेसिक जो उस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कंपैटिबिलिटी में हो, या बेसिक उस इंडस्ट्रियल लोकेशन। आप दिल्ली से मुंबई ट्रांजिट कर रहे हो तो आपको राजस्थान में जो रिसोर्स मिलेगा, या जो गुजरात में मिलेगा, या जो महाराष्ट्र में मिलेगा, वो अलग अलग हो गया ना। तो मेरी पोटेंशियलिटी अलग हो सकती है, एंड दैट इज हाउ आई बी मोबिलाइजिंग ऑन द बेसिक फंक्शन। आपने जब इंडस्ट्रियल टाउनशिप विद द बेसिक फंक्शन डेवलप करना शुरू कर दिया, वो अपने आप लोग रहना शुरू करेंगे, तो वो नॉन बेसिक फंक्शन क्रिएट करेगा। तो इमेजिन करो कि छोटे छोटे आइसोलेटेड नोड्स जब अपने अपने बेसिक और नॉन बेसिक फंक्शन को ग्रो करते चले जाएंगे, तो विल इट नॉट बी व्हाट वी लर्नड एज अर्बन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस? प्लीज रिकॉल टाइप्स ऑफ अर्बन यूनिट्स इन इंडियन सेंसस। अर्बन एग्लोमरेशन, एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप इधर, दूसरा इंडस्ट्रियल टाउनशिप इधर, ग्रोइंग एंड पल्सेटिंग। विल इट नॉट क्रिएट एन अनइंटरप्टेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ कॉरिडोर? Many industrial townships will combine to make one industrial corridor, that is NIMZ. Is that comfortable with us? और industrial town में क्या होगा? वो मेक इन इंडिया में भी लर्न कर लेंगे, MSMEs में भी लर्न कर लेंगे, और स्फूर्ति में भी लर्न कर लेंगे। I think this is comfortable. Back to the screen share. अच्छा, इसमें जो डिपार्टमेंट को इनकॉर्पोरेट करा है वो क्या बता रहे हैं? डिपार्टमेंट कहते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल हमने स्मार्ट सिटीज के रेफरेंस में भी पढ़ा था। मोबिलाइज करने के लिए जितना फंड रिक्वायरमेंट है या इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड है, उन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपने एक ई बिज मिशन मोड प्रोजेक्ट शुरू किया। देयर इज अ सिंगल विंडो हब पोर्टल
जहां पर सारे रेगुलेशंस, एडमिनिस्ट्रेशंस, रूल्स, पॉलिसीज, प्रोस्पेक्ट इज अवेलेबल, ताकि जो भी कोई इन्वेस्टर है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, ओवरसीज इन्वेस्टर है, उसको पता है कि वो किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर रहा है. इट इज बेसिकली रिलेटेड टू प्रमोट पीपीपी मोड. समझ में आ गया? तो इंडस्ट्रियल टाउनशिप को डेवलप करने के लिए आपने एक सिंगल विंडो पोर्टल क्रिएट किया to provide all the information to the potential investors in investing in the development of industrial township. और clean energy, social infrastructure, skill development, recall करो smart cities के सारे constituent. जब आप टाउनशिप डेवलप करोगे तो बाय डिफॉल्ट यू विल बी डेवलपिंग दीज फैक्टर्स. इंडस्ट्रियल टाउनशिप का लॉजिक समझ में आ गया. अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का लॉजिक को पिकअप करते हैं. ठीक है, अब इसको रिमूव कर देते हैं. इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में जो हमारे पास 6 कॉरिडोर्स हैं, पहले सबसे पहले उनके नाम ले लेते हैं, फिर डीएमआईसी को हम स्पेसिफिकली एनलार्ज करेंगे. तो डीएमआईसी को अभी रखा है रिजर्व में, और जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डीएमआईसी के अलावा आपके पास हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं. तो नंबर 1 विल बी डीएमआईसी. नंबर 2 के साथ लिस्ट शुरू करते हैं. It is called Chennai Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited, DFCCIL से अलग है. ये इंडियन रेलवेज पर आज नहीं पहुंच पाएंगे, पॉसिबली कल बात करेंगे, तब हम आपको याद करने के लिए बोलेंगे कि NIMCs को रिकॉल करो. और डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सब अलग अलग है. ठीक है, तो ध्यान से चेन्नई, बेंगलुरु, ब्रैकेट में लिख देंगे चित्रदुर्ग क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. वेरिएबल लेवल्स ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन पर है ये. तीसरे को बोलते हैं ईस्ट कोस्ट. अब कुछ कुछ नाम है जो अपने आप बता नहीं पाते कि वो कहां पर है. जैसे चेन्नई बेंगलुरु बोला तो पता है चेन्नई बेंगलुरु कैसे जा रहे हो. चेन्नई बेंगलुरु जाओगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पड़ता है. मैप ऑफ इंडिया ओपन करो जरा जल्दी अपने सामने. पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ओपन हो गया तो जरा हैंड रेस करो. अब ना अपना पेंसिल को ऐसे हॉरिजॉन्टली मैप ऑफ इंडिया पर रख दो जहां पर आपको चेन्नई दिखाई दे रहा है. और जैसे आप उस पेंसिल या पेन को नोटिस करोगे, चेन्नई इंडिया में एंटर कर रहे हो, चेन्नई आपके ईस्ट कोस्ट पर पड़ रहा है. चेन्नई से चलो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर आपको बेंगलुरु दिखाई देगा और उसी के स्ट्रेट लाइन पर आपको बेंगलुरु दिखाई दे रहा है. यस और नो? चेन्नई इज ऑन ईस्ट कोस्ट, बेंगलुरु इज ऑन वेस्ट कोस्ट एंड बैंगलोर इज इन सेंटर. बिल्कुल अलाइंड पोजीशन पर है तीनों सिटीज. हैंड रेस करके बताइए क्लास, पता चल गया है तो. चित्रदुर्ग ऐड करने का मतलब क्या है? चित्रदुर्ग को ऐड कर लोगे तो चेन्नई वाया चित्रदुर्ग बेंगलुरु जा रहे हो, तो आपने एक थोड़ा सा एल शेप डेवलप किया है. आप बेंगलुरु नहीं जा रहे हो, चेन्नई से बेंगलुरु जा रहे हो, चित्रदुर्ग इंक्लूडेड है. तो कैन यू अंडरस्टैंड दैट इट इज एल शेप्ड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? हैंड रेस. चित्रदुर्ग दिखाई दिया, थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ है. बैंगलोर प्लाट्यू के नदन एज पर है. यस नो? धारवाड़ क्रेटोन का हिस्सा है. चित्रदुर्ग आपने पढ़ा था मैंगनीज के लिए. ठीक है, बेंगलुरु से मुंबई बहुत आराम से पता चलता है. पर ईस्ट, जब ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर की बात कर रहे हो, जो ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं इसको, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर अब मुझे बता नहीं रहा कि भाई ये कहां से कहां तक एक्सटेंड कर रहा है. तो इट इज बेसिकली वाइजैग, विशाखापट्टनम, चेन्नई. देखना, मेंटल डिमार्केशन डेवलप कर लीजिए, नाम बहुत आराम से याद होगा. और नंबर 5वां है अमृतसर, कोलकाता. अब इसमें अपने दिमाग में बस एक बात रखना, हम इसको अभी नहीं मिक्स करेंगे. अभी मिक्स करेंगे तो थोड़ा सा समझने में मुश्किल आती जाती है. तो वी डोंट टेक दैट इनटू डिमार्केशन. आपको नोटिस क्या करना है, दैट व्हेन आई टेक अप द रेफरेंस ऑफ दीज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, इसमें जो ओवरलैपिंग परव्यू आता है वो आता है 2 के साथ. डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है इंडियन रेलवेज का, और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, उससे थोड़ा सा ओवरलैप करता है. मतलब बिल्कुल माइनरली ओवरलैप करता है, बट इसका जो कंप्लीट ओवरलैपिंग है वो नहीं है. तो डीएफसी, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अपने आप में 2 अलग अलग चीजें हैं. इस पॉइंट को अपने दिमाग में बिल्कुल ध्यान से रखना. ठीक है, एंड दैट इज द रीजन द एक्सटेंशन परव्यूज हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. नाउ व्हेन आई ट्राई टू टेक अप द डिमार्केशन ऑफ these, they are at variable levels of planning and implementation. DMIC, Delhi Mumbai Industrial Corridor, is basically the most prominent with the demarcated investment zones. So सबसे पहले इसी को लेते हैं और DMIC के enlargement पर ही हम अपना association ले लेते हैं.
ऑफ द एक्सटेंशन, जिसको हम 6th काउंट करेंगे। तो अभी पहले हम आपको बता देते हैं, उसको आप ध्यान से। इन दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 8 इन्वेस्टमेंट रीजन्स हैव बीन गिवन द मोबिलिटी। अब ये जो बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, और ये सारे नाम आपकी नॉलेज में होने चाहिए। अगर आप अपनी नॉलेज ऑफ मैप को दिमाग में डालोगे तो वो अपने आप ही बहुत याद हो जाएगा। तो अहमदाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन लिख लिया है, तो IR लिखते चल सकते हैं। गुजरात, पिथामपुर हैज बीन डेटरॉइट ऑफ आवर कंट्री। पिथामपुर मध्य प्रदेश में है। पिथामपुर का जो जेनेसिस है वो टाटा मोटर्स के साथ एसोसिएटेड है। पिथामपुर इज नाउ नॉट दैट प्रोमिनेंट विद ऑटो असेंबलेज, ऑटो कंपोनेंट के लिए भी जाना जाता है। सो पिथामपुर धार मऊ इन्वेस्टमेंट रीजन, ये आया मध्य प्रदेश में। अब आप दिल्ली से जब मुंबई की तरफ जा रहे हो तो यू विल बी टेकिंग अप गुजरात, मध्य प्रदेश एज योर कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। अब महाराष्ट्र में हम पिकअप करें नंबर C, इट इज इनकॉर्पोरेटिंग 2 इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स, तो दोनों को ले लेते हैं। एक तो औरंगाबाद में है, और जो D है ये भी महाराष्ट्र में है। ये दिघी पोर्ट है, इंडस्ट्रियल रीजन, ये दोनों महाराष्ट्र में है। आप ऐसे तरह स्टेट वाइज करके भी इसको याद कर सकते हो। ई याद होना चाहिए। मानेसर बवाल इन्वेस्टमेंट रीजन, ये आया हरियाणा में। आपको बता दिया था मानेसर डेटरॉइट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ऑटो कंपोनेंट व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट PLI। DMIC फर्दर इनकॉर्पोरेट। निमराना ऑलरेडी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट रीजन है जापान का। ये आ गया आपका राजस्थान में। राजस्थान एंड महाराष्ट्र आर द 2 states where we have got 2 investment regions demarcated. सो आएगा आपका जोधपुर, पाली एंड मारवाड़, ये दोनों आपका इन्वेस्टमेंट रीजन इन राजस्थान। एंड फाइनली इट इज दादरी, 8 इन्वेस्टमेंट रीजन, 2 each in महाराष्ट्र, राजस्थान, एंड 1 each in गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा। ये इन्वेस्टमेंट रीजन्स हैं इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इट इज इनकॉर्पोरेटिंग द इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स दैट आर मोबिलाइज्ड। और इसके अलावा अगर आपको इंडस्ट्रियल टाउन्स के बारे में पढ़ना है जो कि कोरिलेट करेगा, इसलिए हमने यहाँ नंबर 6 लिखा है। सो वी हैव गॉट 14, सो आई वांट टू क्रिएट इट आउट हियर। वी हैव गॉट 14, 1 4, सारे नाम याद नहीं करना है। NIMCs which is overlapping with the industrial corridors outside DMIC। तो 14 NIMCs इंडस्ट्रियल रीजन्स डिमार्केटेड हुए, उसमें नागपुर इन महाराष्ट्र, प्रकाशम इन आंध्र प्रदेश, आई एम राइटिंग आंध्रा, चित्तूर इन आंध्र प्रदेश, चित्तूर याद आ रहा है व्हेन वी टेक अप द रेफरेंस ऑफ द रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द कोस्टल बेल्ट, है ना। देन इट इज मेडक इन तेलंगाना। तो कुछ नाम आप अपने रेफरेंस में ध्यान रख सकते हो। Hyderabad in Telangana. So they are basically giving us the reference of the new industrial townships that can be mobilized. तुमकुरु बोलते हैं अब इसको, तुमकुरु एंड कोलार, आपने ये नाम भी पढ़े थे when you were talking about resources। तुमकुरु, कोलार, बीदर, कर्नाटका में है तीनों। कुछ नाम आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो 8 investment regions in DMIC and 14 in multiple levels of implementation and planning are the mobilized example। कई बार क्वेश्चन NIMCs पर आ जाता है, और एक बड़ा कॉमन कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स अपने दिमाग में रखते हैं वो अपने दिमाग से आप हटा दो कि when I take up the reference of NIMCs, I'm not taking them to be synonymous to dedicated freight forwarding। ओवरलैप है पर ओवरलैपिंग एब्सोल्यूट नहीं है, एंड दैट इज व्हाट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। अब इसके ऊपर आपने क्या ज्वाइन, आपने लिस्ट क्रिएट कर ली है। DMIC को बहुत अच्छी तरह से पकड़ना, because when I talk about NIMCs and the actual mobilization of industrial townships, I'm having it with the 8 investment regions of DMIC, and DMIC actually overlap करता है Western Dedicated Freight Corridor से, वो हम बताते हैं, अभी हम वहां नहीं लेकर जा रहे हैं। Now when I remove rest of the things from here, National Investment Manufacturing Zone number 1 combined up with Industrial Township number 2, हमने ऐसे करके ही डिमार्केशन किया था। अब आपको समझना क्या है, बहुत ध्यान से समझो। Hypothetically, this is Delhi and this is Mumbai। तो जो मेरा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जिस कॉरिडोर को हम डेवलप कर रहे हैं, उस कॉरिडोर के डेवलपमेंट में हमने मानेसर को भी पिकअप कर लिया,
है ना। हम मानेसर से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, मानेसर से आप आगे बढ़े तो आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया राजस्थान, कोई भी एरिया ले लो, हमने ले लिया नीमराना। वहां से हम आगे बढ़े तो वी हैव टेकन द एरियाज दैट इज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश टू गुजरात, तो मध्य प्रदेश को भी टच कर लेते हैं, दैट वी आर टेकिंग अप मध्य प्रदेश विद पिथामपुर, तो यहाँ से पिथामपुर ले लो, वहां से एंटर कर जाओ गुजरात, गुजरात में आप धोलेरा, मतलब आपने एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस क्रिएट करा। नोटिस करो हम टेक्निकली करेक्ट जा रहे हैं, डायग्रामेटिकली हम बहुत रफ रेफरेंस ले रहे हैं। सो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में मान लो कि हमने इस तरह के टाउनशिप्स को मोबिलाइज किया, ठीक है। हर इंडस्ट्रियल टाउनशिप में, नीमराना में, धोलेरा में, पीतामपुर में आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे कैसे मिलेंगे, आपको हर टाउनशिप में बेसिक एंड नॉन बेसिक फंक्शन मिलेगा। हैंड रेस करो, बेसिक और नॉन बेसिक फंक्शन मिलेगा, यस और नो। और जब बेसिक फंक्शन की बात करोगे तो यू आर कोरिलेटिंग इट विद व्हाट, नॉन बेसिक तो समझ में आ गया सेल्फ कंजम्पशन के लिए। बेसिक फंक्शंस का मोबिलाइजेशन किस तरीके से हो सकता है, इट विल बी एज माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, और इसी के साथ यहां पर ऐड कर सकते हैं हम, इसी पॉइंट पर समझते हैं कमांड एरिया एंड वाटरशेड के बीच का डिफरेंस, वही वाली बात बता रहे हैं आपको, राइटिंग इट हियर। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, कोई जरूरी नहीं है कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज रूरल हो, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज अर्बन भी हो सकता है। तो ये सारा प्रोविजन आ जाएगा MSMEs के डोमेन में, जो हमारा ब्लॉक नंबर 3 है, और ये आ जाएगा हमारा स्फूर्ति के डोमेन में, जो हमारा ब्लॉक नंबर 4 है। आपको बात समझ में आ रही है तो हैंड रेस कर देना। कहने का मतलब क्या होता है, थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनना। हर इंडस्ट्रियल टाउनशिप में मल्टीपल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डेवलप की जाएगी। Micro, medium, small enterprises are identified to be enterprises with the Enterprise Provision 2005. आपने अभी कुछ समय पहले उसका एंटरप्राइज का जो डेफिनेशन है उसमें इन्वेस्टमेंट लेवल का मॉडिफिकेशन किया, हम उसको ऐड कर रहे हैं। When I talk about MSMEs provision and thereby its development, मुझे अपने दिमाग में रखना क्या है कि multiple micro enterprises combines to make a small and then medium, और कोई एक ऐसा एंटरप्राइज जो माइक्रो की लिमिट के से छोटा है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्री है, जो माइक्रो के इन्वेस्टमेंट डेफिनेशन में नहीं आ रही, तो उसका प्रोविजन ऑफ प्लानिंग कैसा होगा, दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न। सो स्फूर्ति इज अप्लाइड टू माइक्रोस्कोपिक एंटरप्राइजेस। हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आ गया है। माइक्रोस्कोपिक, टेक्निकली देयर इज नथिंग कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक नाम की चीज कुछ नहीं है। हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने एमएसएमईज में माइक्रो को एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट लिमिट दिया है, जो आपका एमएसएमईज का न्यू डेफिनेशन अप्लाई हुआ है, उसमें आपने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ डिमार्केशन दिया है, बहुत इजीली और एसोसिएटेड विद प्रॉफिट मार्जिन, दोनों चीजों को। तो मान लीजिए कि मेरा इन्वेस्टमेंट लेवल उस पॉइंट पर नहीं है, पर फिर भी तो आई एम एन एंटरप्राइज। So how will you demarcate that enterprising factor? It has been demarcated as traditional industry. So link कैसे कर दिया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। हर इंडस्ट्रियल टाउनशिप में मल्टीपल ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, मल्टीपल माइक्रो, मल्टीपल स्मॉल, मल्टीपल मीडियम एंटरप्राइजेस हो सकते हैं। ये लिंक क्रिएट हो गया तो जरा हैंड रेस करो। मतलब दिल्ली में मल्टीपल एमएसएमईज होगा, नीमराना में मल्टीपल एमएसएमईज होगा, पिथामपुर में मल्टीपल एमएसएमईज होगा, एंड देयर कैन बी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो यही कंबाइन करके तो आपका नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बना रहे हैं। तो आप इन जो 5 पॉइंटर्स कर लिया था ना, उनमें कोई को भी वाटर टाइट कंपार्टमेंट की तरह कभी जज मत करना। एंड नाउ वी हैव गॉट द लीड टू टॉक अबाउट एमएसएमईज। तो क्या करते हैं, एमएसएमईज का कंस्ट्रक्ट शुरू कर देते हैं इधर से। एंड व्हेन आई टेक अप द रेफरेंस ऑफ एमएसएमईज, आपको अपनी नॉलेज में, मेरे ख्याल से आप सबको इसके बारे में पता होना चाहिए, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो द रिविजन ऑफ द डेफिनेशन, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वर गिवन द एंटरप्राइज स्टेटस सिंस ईयर 2005, और जो हमारा जो रिविजन आया है वो 2020 में आया है। 2020 में जो एमएसएमईज का डोमेन है वो कंटिन्यू कर रहा है, that it will be incorporating manufacturing and service। हम इसमें एग्रीकल्चर को इंक्लूड नहीं करते। ये रिवीजन जो अप्लाई हुआ है ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज के फैक्टर के इंक्लूजन में किया गया है।
and the modified definition is correlated to the growth of all. So पहले इन growth को demarcate कर देते हैं, उसके बाद categories बनाते हैं. It is aiming at developing MSE cluster. It is aiming at developing Prime Minister's employment generation. और यही बार बार आपको समझा रहे हैं, और यही students गलती करते हैं, जो आंसर राइटिंग में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और मल्टीपल चॉइस में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है. It is Spurti, that is a scheme of fund regeneration. And what is traditional industries? Traditional industries is microscopic. ये तो मेरी नॉलेज के लिए हो गया. अब इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हो? हाउसहोल्ड इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री. हाउसहोल्ड और कॉटेज में कोई भी एक्सटर्नल एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होती है. यू सिंपली टेक इट अप एज मी एंड माई फैमिली लेबर. That is how you take up household. And when I take up the reference of village या industries that are beyond household, वहाँ कुछ external employment है, मतलब आप hire करते हैं लोगों को, तो आपका scale of production थोड़ा सा high हो गया. मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर दोनों में है. न्यू डेफिनेशन में आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टर्नओवर को भी लेकर चल रहे हैं, तो आप ये वाला फैक्टर को यहाँ पर ऐड कर लो. और एक चीज वैल्यू वाइज तो याद करना, आई डोंट थिंक दैट मेक्स मच सेंस, और वो आपका क्वालिटी ऑफ आंसर भी अप्लाई नहीं करता है. तो जब आप रिविजन ऑफ डेफिनेशन में बोल रहे हो, तो रिविजन ऑफ डेफिनेशन गोज विद इन्वेस्टमेंट. जब आप इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ाते जाओ, 10 करोड़ से 50 करोड़ है तो स्मॉल है, मोर देन 50 करोड़ है तो मीडियम है, लेस देन 5 करोड़ है तो माइक्रो है. टर्नओवर हमने नई चीज ऐड की है. ओल्ड डेफिनेशन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट अप्लाई होता था, एंड इन्वेस्टमेंट करोड़ में नहीं था, लैक्स में चलता था. सो दैट इज विद द रेफरेंस ऑफ इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स, यू कीप ऑन अप्लाइंग इट. मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज. तो अगर मेरा माइक्रो का डेफिनेशन ये कहता है investment in the machineries, equipments, etc. should not exceed 1 crore and the turnover should not exceed 5 crore. माने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं. अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के डोमेन को टच नहीं करे, मतलब यू आर टेकिंग इट अप टू बी इन द इन्वेस्टमेंट परव्यू which is much smaller than that, it is running in some lakhs, will I cease to remain an enterprise? No, I'll not. So where I'll be covered? I'll be covered as a traditional industries. And I think I have made sense. अब इसी में जो आपकी provisions है उसको आपने demarcate करना है. It is micro, small and medium enterprises that are correlated with multiple functioning domain. आगे बढ़ सकते हैं तो जल्दी से बताइए. Cluster development scheme को focus करो सबसे पहले. It is a CDS, Cluster Development Scheme. आप सबको पता है NPA, non-performing asset, is the most challenging avenue of Indian economy today. We know that mudra loans are also largely falling into NPA. In order to generate the investors' confidence in investing in MSMEs, चाहे वो credit providers हैं, चाहे वो investors हैं, cluster development is going to give us that benefit. किसी एकदम isolated area में invest करने के बजाय cluster में करना resource sharing में मदद करता है and confidence increase करने में मदद करता है with the reference of investors. So CDS का domain we have mobilized on, and when I take up the reference of employment generation program, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, it is basically correlated with new skilling. याद करो industries 4.0 पर है, तो CDS में 2 डोमेन ले लीजिए. एक लीजिए रिसोर्स शेयरिंग और दूसरा लीजिए इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस. इन्वेस्टर्स या क्रेडिटर्स कॉन्फिडेंस. अगर आपको इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, क्यों बढ़ाना है भाई? क्योंकि वी आर टेकिंग द रेफरेंस ऑफ NPA's चैलेंज. ये सबसे बड़ा चैलेंज है इंडियन इकोनॉमी का आज की डेट में. EGP is oriented towards skilling to be in compatibility to industrial revolution 4.0. बात समझ में आ रही है तो हैंड रेज करो. जो आपका पॉलिसी प्रोविजंस है MSMEs का वो ये है.
तो पहला पॉलिसी प्रोविजन तो जो आपके ऑब्जेक्टिव है उसके साथ चला गया, दूसरा प्रोविजन भी उसके साथ चला गया, तीसरे प्रोविजन को क्रिएट करने के लिए यू हैव टू टेक अप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप बोलोगे आईसीटी इज इन कंपैटिबिलिटी टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, बिल्कुल सही, लेकिन ये मुझे कुछ ऐसे पॉइंटर्स देता है जिसको हमें अलग से जज करने की जरूरत है। तो एमएसएमईज प्रोविजंस अंडर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, apart from Atmanirbhar Bharat package that has revised the definition of MSME since 2020, wherein the turnover is also taken into consideration along with investments. Capping value badhega hi, taking the inflationary trend is the different thing that we take into account, with the micro being the smallest and medium being the largest in this category. Continues on with the provisions of CDS cluster development scheme, EGP employment generation program and integration of ICT. हैंड रेस करोगे तो हम आगे बढ़े। ICT के इंटीग्रेशन में मेरे पास बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, सो आई वांट टू क्रिएट इट हियर। इन पॉइंटर्स को अपने दिमाग में बिल्कुल स्टिक कर लेना, इस पर बहुत आराम से क्वेश्चन पॉसिबिलिटी हो सकती है, because these have been the challenging avenues that has been correlated with MSMEs, ठीक है। So ICT integration, information communication technology integration, please pick up the difference and retain it. Champions is for business opportunity seekers. Sampark is for job seekers. Sampark, create out the connectivity with the job seekers. Champions, in the e-biz mission mode, which we have learned, it's again a portal that has been provided to generate guidance and information to the business opportunity seekers. What are the business opportunities that we have in MSMEs? Sambandh is what kind of relation MSMEs are with having CPSEs, union ministries, union departments, which are the other avenues where we can create out our relation. मेरे ख्याल से नाम आसान हो गया। ये सबको कहते हैं एमएसएमई संबंध, एमएसएमई संपर्क, एमएसएमई समाधान, एमएसएमई चैंपियन। अब ट्रेड्स को समझने की कोशिश करो। ट्रेड्स ट्रेज रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम was providing on 45 days as the limit areas, limit time limit। मतलब मान लीजिए I am a central public sector enterprise and I am acquiring some of the product from MSMEs, कोई भी product, मान लो कोई भी, जैसे पेपर, स्टेपल पेन, कुछ भी, कोई भी एक चीज। So I, as a department who is receiving certain product or service from micro, small and medium enterprises, under the trade receivable discounting system, I am required to settle down all the payment due within 45 days. उसको आप डिले करते हैं तो MSMEs के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज का है? फंड क्रंच। So trades was mobilized earlier and trades को हमने अब क्या कर दिया? समाधान में हमने कर दिया that 45 days की लिमिट को रिस्ट्रिक्ट करके 30 दिन कर दिया। You have to settle down the payment due within 30 days. Samadhan is the solution to the liquidity crunch. So 30 days का डेडलाइन हो गया। आपको समझ में आ रहा है? पेमेंट डिले को कंटेन कर देना, 45 दिन को रिड्यूस करके 30 दिन कर दिया है। क्योंकि आप ऐसे सोच कर देखो, आई जस्ट स्टॉप स्क्रीन शेयर, आई एम एन एमएसएमई प्लेयर, हमने आपको कोई चीज बेची, आपको डेडलाइन मिला हुआ है कि 45 डेज में आप पेमेंट सेटल करो, आपके पास 45 डेज है, उसमें आप आगे टाल मटोल कर रहे हो। मेरे पास जब तक आपकी तरफ से पैसा नहीं आएगा, मेरे पास पैसा नहीं है आगे प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने का। आई ऑलवेज रन फ्रॉम द स्केर्सिटी ऑफ फंड। एंड जो मुद्रा है, मुद्रा लोन स्कीम, वो तो क्या है? रीफाइनेंसिंग है ना, टू दी लोन गिवर्स। अब लोन गिवर्स में नाबार्ड भी है, सिडबी भी है, एसबीआई भी है, बहुत सारे हैं। मुद्रा इज रीफंडिंग देम। एंड व्हेन आई टेक अप द रेफरेंस ऑफ लिक्विडिटी क्रंच, तो जो ये समाधान किया, it is to address the delay in the payment to MSMEs. So payments of MSMEs is regulated by what? TREDS, Trade Receivable Discounting System, जहां पर परचेजर को 45 डेज का डिस्काउंट दिया जाता था, अब उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया 30 डेज, and 30 days it has to be settled. It's a deadline actually. It is to be done as soon as possible so that the liquidity crunch in the hand of MSMEs player can be contained. समझ में आ गया? Samadhan is a solution. Sambandh is a relation.
Sampark is for job seekers. Champions is for the business opportunity provided. If you are comfortable with Hindi, the names speak out for themselves. If you are not comfortable with Hindi, we are in the times in India where Hindi is imposed on us and we need to be remembering that. Maximum of the government programs are being named in Hindi. So even if I'm not Hindi speaking, I need to have the comfort level with that. So what are the provisions of MSMEs today with ICT integration? It is MSMEs samadhan, solution to the delay of the payment. MSMEs sambandh, what kind of relation central ministries, central department, central public sector enterprises are having with MSMEs, and which are the avenues where we can enlarge that kind of interrelation. MSMEs Sampark, creating out the link between the job seekers and MSMEs job providers. And champions, it is about generating job for yourself. It is about business opportunity. समझ में आया? और जो आपका एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, पीएम एम्प्लॉयमेंट गारंटी, वहीं पर ही आप कौशल विकास योजना को लिंक इन कर दो. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज व्हाट? स्किलिंग इन कंपैटिबिलिटी टू द चेंजिंग जॉब रिक्वायरमेंट. वो तो अपने आप ही हो गया जब आपने उसको कोरिलेट कर दिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0. आइए बात समझ में. और अब ऐसे सोच कर देखते हैं व्हाट इज स्फूर्ति ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. इसलिए हमने क्लब करा. आप जब नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के प्रोविजंस देखते तो इट सेज एनआईएमसीज इंडस्ट्रियल टाउनशिप, एमएसएमईज स्फूर्ति. तो क्या स्फूर्ति क्या है? स्फूर्ति इज अ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज which fails to come into the investment limit of micro enterprises. Thus, I am not getting covered under MSMEs, but I am a functioning enterprise. Mera turnover or investment limit is not matching up with MSMEs, but I am also given the support. Which kind of support? Cluster development, employment generation, and ICT integration. Have you got it, class? Spurti is related to every provision of cluster developing, same benefit, resource sharing, investors confidence increasing, employment generation, skilling, kaushal vikas yojana, and ICT integration. It is only that it has to be targeted separately because it is not fulfilling the criteria to be qualifying as micro enterprises. It is chota than micro enterprises. Is that comfortable with us? It is as easy as, and can I put it like this? When we were talking about hazard risk mitigation, flood and drought, I said every basin, catchment area is incorporating many command areas. And command areas ko kaise bataya tha? Command areas, because a major drainage basin has got the geographical size of 20,000 square kilometer. So one catchment area or one drainage basin can have many command areas. Command areas are categorized on the basis of their CCA, culturable command area, culturable arable. So the major command area has got 10,000 hectares, medium command area 2,000 to 10,000, and minor command area less than 2,000. And I said, if it is microscopic command area, you call it watershed. यही कर रहा था ना, वही चीज यहाँ पर अप्लाई कर लो. बहुत ध्यान से सुनना. Many traditional industries, बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग. Many traditional industries combine to make a micro enterprise. Many micro enterprises can combine to make a small enterprise. Many small enterprises can combine to make a medium enterprise. Many medium enterprises will be an industrial township. Many industrial township will be an industrial corridor. Industrial corridor is NIMZ, and this is your national manufacturing policy. They are thus related. They are not watertight compartment different from each other. अगर आप conventional thinking रखोगे तो new jobs कहाँ से लेकर आओगे, है ना? And then we are taking up the reference very clearly when you talk about startups and etc. You have to take up the demarcation of loans and factors that will be there. And the third pillar that goes up with Make in India is about technological financial program for self-employment. It is talent utilization. So I just want to take up self-employment and talent utilization in SETU startup. And when we are taking up startups, we are by default taking up the credit lines with the 25 thrust sectors that are in there. And that is what has been created out
as what we call today as the pillars of insurgent India. Think outside the conventional domain. So new mindset, new infrastructure, new processes, all that factor comes in. And to boost entrepreneurship, you have given up the reference of, we all are aware of it. It has its own share of challenges and problems that has been there. Micro units development refinance agency, small industrial development bank of India, national agriculture and rural development bank of India providing on the funds. And India is actually making it up as Atmanirbhar towards the favorable edge. And minded with National Women Empowerment Mission, with rural development, we talked about this Make in India domain. Because Setu is applied with rural areas also, urban areas also. So business opportunity seekers should be taking innovative attempts to think outside the domain of the conventional practice. Because if we want to rope in 63% of the total population in conventional jobs, it will be difficult for us to provide paying jobs to all the job seekers. I think I have given you significant and clear understanding of National Manufacturing Policy 2011 and all its 5 domains. All manufacturing sectors can be implied with these. And this completes our understanding of what we have to take up with manufacturing, and we can straightforward land on to our facilitative sector. फैसिलिटेटिव सेक्टर में फिर आपके पास कैटेगरीज ऑफ द स्टडी आएगा, उसको अप्लाई करने से पहले एक क्विक रिवीजन. आई एम होल्डिंग इट लाइक दिस. National Manufacturing Policy 2011 is being implied with the reference of demographic dividend mobilization. I do understand that this has been updated, revamped, regenerated as in how the time requirement worked there. So when I talk about its policy provisions in the present purview towards the resurgent India that has got 5 pillars to it, it involves 5 policy provisions and they all are correlated. We have implied Make in India into all the manufacturing and service sector that combines to apply to traditional industries, MSMEs. They combine to develop industrial townships and they combine to make up industrial corridors of NIMZs. This is how National Manufacturing Policy involves 5 pointers. MSME's provision continues to incorporate cluster development. MSME's provision continues to incorporate employment generation with Kaushal Vikas Yojana. And when I take up reference of Kaushal Vikas, याद करो कौशल विकास को आप associate कर सकते हो rural area से भी, जहाँ skill development with links to the employability have been there. I hope you are recalling Deen Dayal Upadhyay Antodayan Yojana है, बताया था ना, gainful employment as trinity, rural development, एक infrastructure development, एक gainful employment और एक sustainable development. Gainful में महात्मा गांधी नरेगा भी है और दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना भी है. So MSMEs और स्फूर्ति का डोमेन सबके साथ जा रहा है. And when I talk about MSMEs with the cluster development and employment generation, it is ICT integration. ICT integration में हमेशा दिमाग में रखना 4 चीजें: संबंध यूनियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट CPSE, संपर्क जॉब सीकर्स, चैंपियंस बिजनेस अपॉर्चुनिटी seekers, and samadhan. Samadhan is the solution to the delayed payment of trade receivables discounting system. Confident handling. Done with it. Moving on to our segment number last. And what is that segment? It is a service. Agriculture हम कर चुके, mining हम कर चुके, industries हम कर चुके, electricity हम कर चुके, construction का कोई specific point आता नहीं है, और अब हम services की तरफ जा रहे हैं. Facilitative sector. What is included as industries in India? Mining, manufacturing, mining A, manufacturing B, electricity C, and construction D. समझ में आ रहा है? हैंड रेस कर दो. ये सारा डिमार्केशन हो गया. अब हम कहाँ पहुंच रहे हैं? हम पहुंच रहे हैं तो हमारे कंट्री के हिसाब से हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 ही कैटेगरी में डिवाइड कर पाते हैं. तीसरे फैसिलिटेटिव सेक्टर पर जाना. ठीक है, अब जो तीसरे फैसिलिटेटिव सेक्टर पर जाना है उसको डिमार्केट करने के लिए आज की तारीख में, बिकॉज व्हेन आई टेक अप द रेफरेंस ऑफ, जैसे हमने एक मैन्युफैक्चरिंग को बड़े आसानी से टेम किया, किस पॉइंटर के साथ टेम कर लिया कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में ले लो PLI,
PLI will give you the lead to talk about every factors that is associated with manufacturing. वहां से सपोर्ट लेकर हमने फटाफट मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स को कवर अप किया। बिल्कुल वही वाला लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब इसको अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, वी जस्ट क्रिएट आउट अ पॉइंटर हियर। So it is a service infrastructure development in India have never been with that pace that we are experiencing now. तो मेरे पास काफी बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमें इसमें हैंडल करना पड़ेगा। बट उन सबको हैंडल करने के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो एसोसिएट करना है प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। ये आप इसको ले लो अम्ब्रेला, और इस अम्ब्रेला से ही हम आगे अपनी लिंक्स को क्रिएट कर लेंगे और कैटेगरीज अप्लाई करेंगे। तो जो जो चीजें लिखते जा रहे हैं उनको आप जल्दी जल्दी से लिखते जाओ, उसके बाद हम इसको डिमार्केशन। मोबिलाइज्ड इन 2021 विद 2-point ऑब्जेक्टिव, लास्ट माइल कनेक्टिविटी वर्सेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर्सेस मेगा पार्क्स। आपने मेगा पार्क्स के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स पढ़े। मेगा पार्क्स आर फार्मास्यूटिकल, याद आ रहा है फार्मास्यूटिकल मेगा पार्क्स रिलेटेड टू API। You have learned mega parks as food park scheme. You have learned mega parks as प्रधान मंत्री मित्रा, याद आ रहा है कि नहीं? 5Fs, टेक्सटाइल पार्क्स। तो इनके बारे में पढ़ेंगे जब जरा थोड़ा सा ट्रेड के डोमेन पर जाएंगे। तो इकोनॉमिक जोन एज द प्रायोरिटी जोन है, और इकोनॉमिक जोन के जो बड़े PMGS NMP इज इकोनॉमिक जोन एज प्रायोरिटी। गति शक्ति इनिशिएटिव इज फॉर द लॉजिस्टिक नेटवर्क, एंड लॉजिस्टिक नेटवर्क हैज टू बी मल्टी। तो जब आप मेगा पार्क्स के बारे में बात कर रहे हो या इकोनॉमिक जोन्स के बारे में बात कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली इट विल बी कोरिलेटेड टू, हमने आपको ऑलरेडी रिमाइंडर दे दिया, फिर भी लिख दे रहे हैं, टेक्सटाइल पार्क्स, फार्मास्यूटिकल पार्क्स या क्लस्टर्स, डिफेंस कॉरिडोर। कॉरिडोर्स अभी आपको बता देंगे, आपको एक कॉरिडोर तो बता दिया NIMC, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, हाई स्पीड रेल, डिफेंस कॉरिडोर। डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश का 6 नोडल पॉइंट है और तमिलनाडु में 5 नोडल पॉइंट है, बता देंगे। इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स, बहुत सारे कैटेगरी, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स में आप SECs को अप्लाई करते हैं, ठीक है। It is incorporating 16 ministries with Ministry of Road Transport and Highway, Ministry of Railways in private, and it incorporates by default हो जाएगा roads, रेल, यही हमारे स्टडी को आगे लेकर जाएगा। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर तो रेलवेज के साथ हुआ ना, भारतमाला रोडवेज के साथ हो जाएगा। एयरपोर्ट्स। अब बिफोर आई टेक यू टू दिस NIP एंड NMP का जो एक हमेशा एक स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, इसको जज करने के लिए ध्यान से सुनना और समझना। अभी थोड़ी देर बाद इसको एड अप करेंगे। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इज इन कॉम्बिनेशन टू नेशनल मोनेटाइजेशन, और हम यहाँ पर NMP की बात कर रहे हैं, तो आप इसको कंफ्यूज मत करना इस NMP से। इसका तो नाम है नेशनल मास्टर प्लान। तो इसको आप कैसे बुलाओगे? ये आपका क्या नाम हो गया? ये नाम हुआ PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, PMGS NPL। ये अलग है नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी। तो NIP और NMP थोड़ी देर बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं GS NMP की, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की। ये बात समझ में आ गई है तो जरा गो अहेड दे। गति शक्ति मास्टर प्लान इज मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क। इसका फंडामेंटल लॉजिक है लास्ट माइल कनेक्टिविटी देना, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना। इट टेक्स दी प्रायोरिटी डोमेन टू इकोनॉमिक जोन। इकोनॉमिक जोन कोई भी हो सकता है, टेक्सटाइल पार्क्स हो सकता है, फार्मास्यूटिकल हो सकता है, मेगा फूड हो सकता है, डिफेंस कॉरिडोर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्क हो सकता है, SECs भी हो सकता है। अब इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो हम इवेंचुअली समझते हैं। और जो PMGS NMP है, इसके आपके फंक्शनिंग पिलर्स आपके रेडार पर होने चाहिए। आपको सारे पॉइंटर्स बता दिए, 6 पिलर्स याद होने चाहिए। 5 पिलर बताए आपको रिसर्जेंट इंडिया के, 4 पिलर्स आपको स्मार्ट सिटीज के पता है। यहां पर आपको 6 पिलर याद रखने हैं। कौन कौन से पिलर्स हैं? पिलर नंबर 1, कहने का मतलब अगर आप मान लो हम राजस्थान ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, ग्रेट इंडियन डेजर्ट में हाईएस्ट प्रायोरिटी इन गति शक्ति क्या होगा? या तो आप रोडवेज को प्रोमिनेंस दे सकते हो,
या फिर आप एविएशन को दोगे। रेलवेज का तो वहां पॉसिबिलिटी बहुत मुश्किल है। डेजर्ट में तो आप मल्टी गॉज नेटवर्क का एप्लीकेशन ही बड़ा मुश्किल से कर पाओगे, यस और नो। तो क्रॉस सेक्शन इंटरैक्शन में ये जज करना कि गति शक्ति में कौन सा मोड है जो सबसे प्रायोरिटी रेफरेंस पर डेवलप होना चाहिए, उसके बाद बाकी सारी चीजें बाद में करेंगे। कोऑर्डिनेशन को सिंक्रोनाइज करना है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कलर चेंज कर देते हैं। कोऑर्डिनेशन जो आपको बताया था पैन सिटी डेवलपमेंट स्मार्ट सिटीज में, कि कोई इंटरेस्ट क्लैश ना करे और जो प्रोग्राम्स है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में आराम से टाइमली बाउंड मैनर खत्म हो जाए ना। सो डिलेज और क्लैशेस को अवॉइड कर। कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है, जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री है, वो अपने आप में कोऑर्डिनेशन डेवलप करे। एंड ऑप्टिमाइजेशन is expansion in creating. Optimization को आप associate कर लो is basically in any sort of modification, expansion, shrinkage based on judgment. You planned something and when you have started implementing it, आपको पता चला कि भाई इसमें अगर ये थोड़ी सी चीजें इधर उधर मोल्ड हो जाएंगी तो it will become much more practical for me to apply. So that is optimization. Pradhanmantri Gati Shakti initiative was mobilized in 2021. It aimed at facilitating last mile connectivity by decreasing the logistic cost. Cement sector में कल हमारे radar पर बड़ा clearly आया था कि in spite of the fact that we are producing cheapest ex factory price cement, हमारा cement वो competitiveness project ही नहीं कर पाता global scale पर जो उसको करना चाहिए. And this is essentially because of high handling charges. India is the example of the country that is having its dominant position in Indian Ocean region. और Indian Ocean region से half of the global container traffic जाता है, और half of the global container traffic में city country like Singapore और cities like Aden, अब तो खैर political devastation की वजह से पिछले कुछ सालों से jump पर है, but any case, Aden as example, Dubai as example, Colombo as example have made themselves a logistic hub. और इंडिया जिसके पास 12 मेजर पोर्ट्स हैं मेनलैंड पर, it has not been getting out with the benefits of transshipment movement. So India requires something that will be facilitating it to grow in terms of the locational benefit and other economic benefit. So when we are trying to reduce the logistic cost, we are actually trying to create out favorable locational benefit for our country. So of the 2 years of the implementation, this multimodal logistic network have been revamped as Pradhanmantri Gati Shakti National Master Plan. ये नेशनल मास्टर प्लान अपने 2 साल के जो गेन है उसी पर बिल्ट ओवर किया गया है। उस बिल्डिंग ओवर में आपने इसको इकोनॉमिक जोन को प्रायोरिटी दिया और प्रायोरिटी देने के साथ साथ 6 पिलर्स जस्टिफाई कर दिए, ये हमने ऐड किया है। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो कि 2023 से आपने प्रधानमंत्री गति शक्ति को नेशनल मास्टर प्लान बना दिया। इस नेशनल मास्टर प्लान में आपने 6 पिलर्स ऐड किए और इसमें आपने इकोनॉमिक जोन को प्रायोरिटी दे दी। आपको बात समझ में आ गई, ए एंड बी। कैरिंग फॉरवर्ड द स्टडी फ्रॉम हियर, गति शक्ति का मल्टी मॉडल बता दिया, बट एनआईपी दैट इज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनएमपी मोनेटाइजेशन के मल्टीपल एग्जांपल्स आएंगे एज वी गेट ऑन टू रोड सेक्टर, भारतमाला, रेल सेक्टर, dedicated freight corridors along with high speed railway with rail plan 2030 बहुत important है, civil aviation पूरे देश का आम नागरिक, and then we have got jal shakti mantralay, sagar mala we have to take into account. So all that will be coming our way tomorrow. I hope it was an informative class. Bye bye.